Assalamualaikum dear students, welcome to your biology class. I am your teacher Khadija and today we are going to start our chapter number 1, that is Introduction to Biology. Today we are going to study about Introduction to Biology, different divisions of biology and branches of biology. So let's start our today's lesson formally. At the end of the lesson you will be able to define biology and its major divisions, that are botany, zoology and microbiology. You will be able to define different branches of biology, that is morphology, anatomy, histology, cell biology, physiology, genetics, embryology and taxonomy. आज के लेसन में हम इन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. दीज टू वर्ड्स आर bio and logos. Bio mean life and logos mean thought or reasoning. So biology means branch of science that deals with the study of life. So what comes into meaning of life? Life से आपके माइंड में क्या आता है? Life mean living organisms and living organisms are of two types, that are animals and plants. सो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में, और बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लॉगस. दीज टू आर ग्रीक वर्ड्स दैट हैव मीनिंग लाइफ एंड थॉट. सो व्हाट डू वी स्टडी इन बायोलॉजी? इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. We study about the functions in different living organisms. Living organisms की body में different functions कैसे होते हैं and related aspects of living organism. Living organisms अपने लाइफ स्पैन में different activities करते हैं और वो जो activities हैं वो कैसे perform होती हैं, उन activities को perform करने के लिए कौन से organs required हैं, उन organs के functions क्या हैं. These are the things that we study in biology. Major divisions of biology. So biology has been divided into three main divisions, that are zoology, botany and microbiology. What is zoology? The word zoology is a combination of two words, zoo and logy. Zoo means animals. जैसे कि आप zoo का visit करते हैं, zoo में animals होते हैं. Zoo means animals, logy mean study or reasoning or thought. So zoology ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें हम पर्टिकुलरली एनिमल्स को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं. एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन ज़ूलॉजी वी स्टडी अबाउट एनिमल्स. देन वी हैव second division of biology, that is botany. In botany we study about plants. We study about all aspects of plants, their structure, function, reproduction, lifespan, तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं बॉटनी में. द थर्ड डिवीजन इज माइक्रोबायोलॉजी. zoology and botany, these are old divisions of biology, but in 21st century we have actually added the third division of biology, that is microbiology. Microbiology नाम से पता चल रहा है micro mean small, micro mean the very small creatures that we cannot see with a naked eye. So micro represents here microorganisms. Microorganisms वो organisms हैं जिनको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते और हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है. The word micro means small and microorganisms are the organisms which are so small that they cannot be seen with the naked eye. So microbiology deals with the study of microorganisms. For example, bacteria. For example, viruses. For example, different protozoans in our body. So these were three divisions of biology, that were zoology, botany and microbiology. Further we are going to study about different branches of biology. Let's start branches of biology. So what are branches of biology? Here we have a tree. You can see the tree have different branches. जैसे एक ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस होती है, बिल्कुल इसी तरह से बायोलॉजी को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है. वो तमाम जो ब्रांचेस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे इन डिफरेंट ब्रांचेस.
So you can compare the branches of biology with the branches of a tree. First branch is morphology. Morphology is the study of form and structure of living organisms. मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्चुअली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फॉर्म कैसी है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो देखने में हमें कैसे नज़र आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव एन ईगल. अब आप इस ईगल को देख के क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इस ईगल की एक बीक है, फिर इस ईगल के आपको विंग्स नज़र आ रहे हैं, इसके फेदर्स नज़र आ रहे हैं, इसकी आई हम देख सकते हैं. यानी कि इस ईगल को देख के हमने इसके एक्सटर्नल फीचर्स की जो स्टडी की है, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. Next we have second branch, that is anatomy. Anatomy is exactly opposite of morphology. Morphology में हमने देखा था कि external appearance कैसी है. Anatomy में हम ये देखेंगे कि internally structures कैसे हैं. Internal structure की study को हम कहते हैं anatomy. For example, here we have structure of brain. ये structure of brain है जो आपको नज़र आ रहा है. लेकिन अगर इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपने इंटरनली स्टडी करना है तो फिर हम इसे कहेंगे एनाटॉमी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसमें हम अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं. तो द फर्स्ट इमेज डिपिक्टेड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रेन एंड द सेकेंड इमेज इज डिपिक्टिंग एनाटॉमी ऑफ ब्रेन. थर्ड ब्रांच इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ को हम स्टडी करते हैं जब माइक्रोस्कोप से, तो उसको कहते हैं हम हिस्टोलॉजी. टिश्यूज़ बनते कैसे हैं? व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ आर एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग अ सेम और कॉमन फंक्शन. तो सेल्स आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक. वी आर नॉट एबल टू स्टडी सेल्स ऑल द टाइम्स विद अ नेकेड आई, सो वी हैव टू स्टडी सेल्स और टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. व्हेन वी स्टडी टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी. जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि सेल बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं. सेल को हम कैसे स्टडी करते हैं? सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, सेल का साइज़ क्या है. और ये भी बहुत इसमें देखेंगे हम कि अगर सेल जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमें सेल को किस हद तक स्टडी करना है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अ एनिमल सेल. सो इफ़ वी हैव एन एनिमल सेल, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. एनिमल सेल है तो इसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है या नहीं, ये हम सब स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में. सेल बायोलॉजी में हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल की डिवीजन कैसे होती है, इसको देखेंगे. अगर हमारे पास किसी सिंपल ऑर्गेनिज्म का सेल है जैसे कि बैक्टीरिया, तो उसकी जो स्टडी होगी डेट विल बी एट सिंपलर लेवल. लेकिन अगर हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स है लाइक एनिमल सेल, तो फिर उसकी एक डिटेल स्टडी होगी. इसमें हम सेल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको भी देखेंगे और उन ऑर्गेनेलिज के फंक्शन क्या हैं उनको देखेंगे. एंड एट द एंड वी विल बी स्टडिंग द सेल डिवीजन. नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हर टाइम रेस्पिरेशन हो रही है, हमारी बॉडी में हर टाइम ब्लड सर्कुलेशन हो रही है. तो रेस्पिरेशन एक इंटरनल फंक्शन है बॉडी का. रेस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है बायोलॉजी की, डेट इज़ फिजियोलॉजी. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है, डेट इज़ फिजियोलॉजी. सो हेयर यू कैन सी इमेज ऑफ अ मैन एंड ही इज़ बीन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. और वो जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रनिंग, दिस ऑल विल बी स्टडीड इन फिजियोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ जीन्स. स्टडी ऑफ जीन्स और साथ इन जीन्स का क्या रोल है इनहेरिटेंस में. एंड नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance means the transmission of characters from one generation to another generation. Inheritance का मतलब वो characters जो कि हम अपने पेरेंट्स से acquire करते हैं. तो जीन्स की स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी स्टडी इनहेरिटेंस. वी स्टडी द पैटर्न हाउ जीन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस. Next branch is embryology.
Embryology is the study of development of an embryo to new individual. एक एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट होता है, इस पूरे फेज की स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में. अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज एक्चुअली अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट प्रोसेस का जो पहला स्टेज है दैट इज एन एम्ब्रियो. यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड. और स्ट्रक्चर ऑफ सीड में आप देखेंगे यहाँ पे you have been watching here a baby plant. This baby plant will eventually grow into a mature plant, and this baby plant is called as embryo. So embryo is basically the first stage of development of a multicellular organism. Next branch is taxonomy. Taxonomy is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. इस वक्त हमारी प्लैनेट अर्थ पे 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं. उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे और उनके डिफरेंसेस की बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और फिर उनकी नेमिंग करते हैं उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग. तो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी. This was all about today's lesson. I hope I have clarified all the points in a well manner. This is time to say you Allah Hafiz till we meet in the next lesson.